हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स डेली एमसीक्यूज क्लास में। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स डेली एमसीक्यूज क्लास में आपका स्वागत है। आज 23 फरवरी 2026 है और आज हमारे पास बैंकिंग क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई और राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण पड़ाव से जुड़ी खबर है। यह सत्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पड़ाव से जुड़ी खबर है। यह सत्र आपको प्रत्येक विषय की गहरी समझ देने के लिए तैयार किया गया है, जो आपकी परीक्षाओं के और सामान्य जागरूकता का दोनों के लिए अनिवार्य है। Dear friends, today is 23 February and we have a jam-packed season covering crucial developments in the banking sector, international legal battles and national security milestones. This script is designed to give you deep insight in each topic, which is essential for both your exam and general awareness. Dear friends, if you are very serious about government exams to crack, subscribe to Examples Current Affairs and press the bell icon so never miss important updates। प्यारे दोस्तों, अगर आप सरकारी परीक्षाओं के बारे में गंभीरता के बारे में सोच रहे हैं तो आइए हमारे चैनल एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज के शीर्ष 15 प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। So, today's current affairs class has been divided in 7 major topics, dear friends, which is the headlines. Let's overlook. Headlines number 1 is talking about the banking and economy sectors, and headline number 2 is talking government and administrations. Hence, the headline number 3 is talking about judiciary and legal affairs. Headline number 4, infrastructure and development. Headline number 5 is talking international relations and trade, and headline number 6 defense and security, and headline number 7 is talking about the some state affairs belong Nagalands. Let's dive in the class. Today's first question. The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India recently decided to keep the repo rate unchanged at which percent? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। इनमें से कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए 4.54%, बी 5%, सी 5.25% एंड सी डी 6%। The Monetary Policy Committee MPC of the Reserve Bank of India has decided to maintain the repo rate at 5.25%, and these decisions reflect the RBI's neutral stance even though inflation is under control around 2.1%. The committee chose not to cut rates to ensure long-term stability in the economy while continuing to support growth मोमेंटम। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो दर को 5.25% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आरबीआई के तटस्थ न्यूट्रल रख को दर्शाता है। हालांकि मुद्रास्फीति नियंत्रण में लगभग 10.1% है, लेकिन समिति ने विकास की गति का समर्थन देते हुए अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक स्थिर सुनिश्चित करने के लिए दर में कटौती नहीं करने का विकल्प चुना है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर 5.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। According to the RBI bulletin, which of the following sectors has attracted significant corporate investment in financial year 2026? आरबीआई के बुलेटिन के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कंपनियों का महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया गया है?
Answer option A, textile and tourism. B, power, chemical and construction. C, agriculture and fisheries. And D, banking and insurance. According to the latest RBI bulletin, corporate investment is shifting towards heavy infrastructure. The power, chemicals, and construction sector have emerged as the leaders in attaining capital. This indicates that private companies are confident in India's long term industrial growth and infrastructure development। आरबीआई की ताज़ा बुलेटिन के अनुसार कॉरपोरेट निवेश भारी बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ रहा है। बिजली, रसायन और निर्माण क्षेत्रों पूंजी आकर्षित करने की अग्रणी बनकर उभर है। यह इंगित करता है कि निजी कंपनियों भारत की दीर्घकालीन औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास में विश्वास रखती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer. Power, chemicals and constructions. Next question. Question number 3. The government of India has asked states to complete household service by April and mainly to ensure which states. भारत सरकार ने राज्यों से अप्रैल के अंत तक घरेलू सर्वेक्षण पूरा करने को कहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है इनमें से कौन सा है। आंसर ऑप्शन ए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। बी, एक्यूरेट सेंसस पॉपुलेशन काउंट। सी, टाइमली डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम टू वल्नरेबल ट्राइब्स। एंड डी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। The central government is focusing on last mile delivery. By completing these surveys by April, the government aims to ensure the timely delivery of welfare schemes and specifically to vulnerable tribes. This data will help identify eligible beneficiaries who have been previously excluded from social safety nets। केंद्र सरकार अंतिम मील तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अप्रैल तक इन सर्वेक्षण को पूरा करके सरकार का लक्ष्य विशेष रूप से कमजोर जनजातियों वल्नरेबल ट्राइब्स तक कल्याणकारी योजनाओं को समय पर पहुंच सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। यह डेटा उन पात्र लाभार्थियों को पहचान करने में मदद करेगा जो पहले सामाजिक सुरक्षा के तंत्र से बाहर रह गए थे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, टाइमली डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स टू वल्नरेबल ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Which High Court recently sought clarifications from the state government regarding over 400 custodial death? हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से हिरासत में हुई 400 से अधिक मौत के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था? आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली हाई कोर्ट। बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। सी, झारखंड हाई कोर्ट। एंड डी, माद्रास हाई कोर्ट। Well, recently, the Jharkhand High Court has taken a stern view of human rights within the state's prison system. It recently sought an official clarifications from the state government regarding reports of over 400 custodial deaths, highlighting the need for better police reforms and prisoner safety। हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्यों की जेल प्रणाली के भीतर मानवाधिकार पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने हाल ही में 400 से अधिक हिरासत में हुई मौत की खबरों के संबंध में राज्य सरकार से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा था, जो बेहतर पुलिस सुधार और कैदियों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
सी इज द राइट आंसर, झारखंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द पनवेल अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस कनेक्ट विच टू स्टेट्स? पनवेल अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस किस दो राज्यों को जोड़ती है? आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र एंड असम, बी महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, सी गुजरात एंड बिहार, एंड डी दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। As part of the Amrit Bharat initiative to modernize rail travel, a new express train has been introduced between Maharashtra and West Bengal. Specifically, it connects Panvel near Mumbai to Alipurduar, providing a faster and more affordable travel options for thousands of interested passengers. रेल यात्रा के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत पहल के तहत महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। विशेष रूप से यह पनवेल मुंबई के पास को अलीपुरद्वार से जोड़ती है, जिससे हजारों अंतर्राज्यीय यात्रियों के लिए एक तेज और अधिक किफ़ायती यात्रा विकल्प उपलब्ध होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आरबीआई डाटा, फॉरेन portfolio inflows into India improved mainly due to which of the following? आरबीआई की हाल ही के आंकड़े के अनुसार भारत में विदेशी पोर्टफोलियो प्रभाव में सुधार मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन से कारण से हुआ है? आंसर ऑप्शन ए इंक्रीज इन जीएसटी रेट्स, बी ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूएस एंड द ईयू, सी डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस, एंड डी डिडक्शंस इन इनकम टैक्स। According to the recent RBI data, shows a healthy rise in FPI. The primary drives is successful negotiations of trade agreements with the US and EU. These agreements have reduced trade barriers and increased global investor confidence in stability of the Indian market. हाल ही की आरबीआई के आंकड़े के विदेश नीति पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई में अच्छी वृद्धि दिखाते हैं। इसका प्राथमिक कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ ईयू के साथ सफल व्यापार समझौते हैं। इन समझौतों ने व्यापार बाधाओं का कम कर दिया है, जो भारतीय बाजार की स्थिरता में वैश्विक निवेश का विश्वास बढ़ाया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, trade agreements with the US and EU. Next question. Question number 7. The Nagaland teachers suspended their education after receiving assurance regarding which of the following? नागालैंड के शिक्षक ने निम्नलिखित बाधाओं के संबंध में आश्वासन मिलने के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। इनमें से कौन सा कारण है? आंसर ऑप्शन ए सैलरी इंक्रीज, बी पेंशन्स बेनिफिट्स, सी जॉब रेगुलेशंस, एंड डी हाउसिंग फैसिलिटीज। Teachers in Nagaland had been protesting for better working conditions. They recently decided to suspend their allegations after state government provide unwritten assurance regarding to job regulations. This move brings relief to many educators who have been working on a temporary or ad hoc basis. नागालैंड में शिक्षक बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा नौकरी की नियमाधिकरण जॉब रेगुलेशंस के संबंध में लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने हाल ही में
अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह कदम उन कई सिखों के लिए राहत लेकर आया है जो अस्थायी या दर तक एडहॉक आधार पर काम कर रहे थे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जॉब रेगुलरिजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8. Which Indian minister laid the foundation stone of an Assam police campus and declared that India would be free from Naxalism by which date? किस केंद्रीय मंत्री ने असम पुलिस परिसर की आधारशिला रखी और यह घोषणा की कि भारत की किस तारीख तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए मार्च 31st 2026, B August 15 2026, C January 26 2027, and D December 31st 2026. During the foundation stones unlaying ceremony for an Assam police campus, the Union Home Minister declared that India would be completely free from Naxalism by March 31st, 2026. The government is using a dual strategy of intense security operations like Operation Black Forest and grassroots development to achieve this. असम पुलिस परिसर की शिलान्यास समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने यह घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इसे हासिल करने के लिए सरकार को गहन सुरक्षा अभियान जैसी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और जमीनी स्तर पर विकास की दोहरी रणनीति का उपयोग करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A is the right answer, March 31st, 2026. Next question. Question number 9. The Supreme Court of which country recently struck down sweeping tariffs imposed by former President Donald Trump? किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक शुल्क को रद्द कर दिया है? आंसर ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी कनाडा एंड डी जर्मनी। In a major legal shift, the United States Supreme Court struck down the broad tariffs imposed during the former Trump administrations. The court ruled that the president had exceeded his executive authority under the International Emergency Economic Power Act IEEPA, which has significant implications for global trade. एक बड़े कानूनी बदलाव में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ट्रंप प्रशासन के दौरान लगाए गए व्यापक शुल्क को रद्द कर दिया है। अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम IEEPA के तहत अपने कार्यकारी अधिकार उल्लंघन किया था, जिसका वैश्विक व्यापार का पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B is the right answer, United States. Next question. Question number 10. Following the court ruling, the US announced a temporary tariff of how much on imposed goods? अदालत के फैसले के बाद अमेरिका ने आयात वस्तुओं पर कितने अस्थायी शुल्क घोषित कर दिया है? आंसर ऑप्शन ए 5%, बी 10%, सी 12% and D 15%. Although the previous tariff was struck down, the US administration quickly announced a new more targeted temporary tariff of 15% on import goods. This is intended to act as a protective measure for domestic industries while the legal framework is adjusted. हालांकि पिछले
शुल्क रोध कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका प्रशासन ने तुरंत आयातित वस्तुओं पर 15% का नया और अधिक लक्षित अस्थायी शुल्क घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में कार्य करना है, जब तक कि कानूनी ढांचे के समझौते नहीं किया जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज D is the right answer, 15%. Next question. Question number 11. Pakistan recently conducted airstrikes along its border with which country? पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी सीमा पर हवाई हमले किए? आंसर ऑप्शन ए ईरान, बी इंडिया, सी अफगानिस्तान, सी चाइना। Pakistan recently carried out untargeted airstrikes along the border with Afghanistan. These strikes were conducted in the Nangarhar and Pakistan provinces in response to a surge in cross-border terror activities. पाकिस्तान ने हाल ही में एक अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा पर लक्षित हवाई हमले किए हैं। ये हमले सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि के जवाब में नंगहा और पक्तिका प्रांत में किए गए हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Pakistan's airstrike target campus of which military organizations? पाकिस्तान के हवाई हमले में किस आतंकवादी संगठन के शिविरों की निशान बनाया? आंसर ऑप्शन ए ISIS, बी तालिबान, सी तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान, डी AI वायदा। The primary targets to these Pakistan airstrikes were the hideouts and training camps of Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Pakistan has accused the group of using Afghan soil to launch attack inside Pakistan. इन पाकिस्तानी हवाई हमले का प्राथमिक लक्ष्य तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP की ठिकाने और प्रशिक्षण शिविर थे। पाकिस्तान ने इन समूहों पर पाकिस्तान को भीतर हमले करने के लिए अफगान धरती का उपयोग करने का आरोप लगाया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। India's long-term outlook remains strong primarily due to which of the following reason? भारत का दीर्घकालिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण में से किससे मजबूत करना है? आंसर ऑप्शन ए हाई इन्फ्लेशन, बी वीक एक्सटर्नल सेक्टर, सी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, एंड डी रिडक्शंस एक्सपोर्ट। Economists and the RBI believes in place India's outlook is reward due to strong growth momentum and controlled inflations. Unlike many global economies and struggling with high prices, India has managed to keep inflation low around 2.1%, while industrial investment countries continues to rise. अर्थशास्त्रियों और आरबीआई का मानना है कि मजबूत विकास गति और नियंत्रित मुद्रास्फीति के कारण भारत का दृष्टिकोण मजबूत है। उच्च कीमतों से जूझ रहे कई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का विपरीत भारत मुद्रास्फीति को कम लगभग 2.1% है रखने में सफल रहा है, जबकि औद्योगिक निवेश में वृद्धि जारी है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer, strong growth momentum and controlled inflation. Next question. Question number 14. The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India currently consists of how many members? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में वर्तमान कितने सदस्य हैं? आंसर ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 एंड डी 7।
The Monetary Policy Committee consists of 6 members. This included the RBI governor and deputy governor in charge of monetary policy, one official from the RBI, and 3 external members appointed by the central government to ensure a diverse perspective on interest rate decisions. मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इसमें आरबीआई गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई की एक अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 बाहरी सदस्य शामिल होते हैं ताकि ब्याज दर के नियंत्रण पर विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer, 6 member. Next question. Today's last question, question number 15. Capacity utilizations in India's economy currently stands at approximately which of the following percents? भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में क्षमता उपभोग लगभग इनमें से किस प्रकार रहा है? Answer option A 65%, B 75%, C 74%, and D 84%. According to the capacity utilization, which measures how much of Installized's manufacturing capacity is being used, currently stands at 75%, 74%. This is a very positive sign as it indicates that demand is strong and industries are operating near their peak, which often lead to further private investment. हाल के आंकड़े के अनुसार क्षमता और उपयोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस जो यह मापता है कि स्थापित विनिर्माण क्षमता को कीमत उपयोग किया है जा रहा है, वर्तमान में यह 74% है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है क्योंकि यह दर्शाता है कि मांग मजबूत और उद्योग अपने चरम के करीब काम कर रहे हैं, जिससे अक्सर निजी निवेश में वृद्धि होती है। So the correct answer for this question is C is the right answer, 74%. Dear friends, that's all for today's current affairs class. That's bring us to the end of today's decline current affairs breakdown. These topics are vital for understanding the current trajectory of country and the world. Keep revising these notes and stay curious. If you found this helpful, please like, share and subscribe to our channels. Thank you for watching. अगर आप सरकारी परीक्षाओं के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल एग्जाम पल्स करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।